Hi everyone, welcome to the official YouTube channel of Law Prep Tutorial. I am Saket, your mentor, and in today's video we are going to talk about effective reading strategies for CLAT. Now if we take ourselves back to CLAT and AILET, now it's a matter of understanding that CLAT ka reading comprehension section is roughly 1/5 of the entire paper. Now add to it critical reasoning, add to it general knowledge, add to it quant, ye sare sections, and in fact legal also. If you add all these sections, it is almost the entire paper. Now you come to AILET. In AILET, you have 50 questions, 50 odd questions from reading comprehension. That is roughly 1/3 of the exam there. Now, this point is that if you have mastered quant, if you have mastered, let's say, analytical reasoning, and if you have mastered GK, you are for sure going to excel there. But क्या उससे ये गारंटी होती है कि आपके रीडिंग स्किल्स और आपकी रीडिंग स्ट्रैटेजीज ज़्यादा इफेक्टिव हो पाएंगी? और will you be able to compensate for the loss that you will incur if you don't focus on reading? The answer is simply no. So करना क्या चाहिए? That is exactly what we are going to deal with in today's video. Let's see. So I have divided the video into 4 specific modules. जहाँ पे the first module is about speed reading or the effective strategies that we can use for speed reading, and also the do's and don'ts. The do's and don'ts as in reading में हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, versus things that we should be focusing on when it comes to effective reading and eventually paced reading. The second point or the second module will be about active reading, and active reading के साथ साथ how to annotate, how to summarize, and how to have a gist in your mind, how to have a gistful understanding of the passage in your mind. The third module will be mapping the passage, as in a passage could be about intro, conclusion, cause, effect, or a chronological order of something. So passage का transition, passage का flow of idea, passage का flow of argument कैसे track करते हैं, कैसे map करते हैं, that will be the third module. And the last one will be question analysis. At times we find questions, and question के हिसाब से भी we try to align the strategy, align the or scan the data that we need to look for. So we are going to deal with these 4 modules in the session today. Let's start with the very first one, which is module 1 or speed reading techniques. अब अगर हम speed reading techniques की बात करें, so there is one strategy जो students usually follow करते हैं when they are not used to reading, या कभी उन्हें किसी ने स्कूल लाइफ में या as such कभी सिखाया नहीं like रीडिंग में क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए. So the very first thing that we do is कि we try to hum the words in our mind, we try to murmur the words in our mind, और हमें लगता है कि हम ऐसा करके पूरा का पूरा पैसेज बहुत इफेक्टिवली समझ पा रहे हैं. Now that's the catch. You think of that you are murmuring the words, 150 words to 50 words in a minute, and you understand the passage. The point is कि ये सबसे बड़ा distraction होता है. And what separates a rookie or a noob from a topper or from a topper's approach is that if you are a rookie, you try to read word by word and you try to sub-vocalize the words. आप सारे words दिमाग में बोलते हो. Ideally, what you need to do is कि take a pointer, एक physical pointer के लिए आप एक pencil ले सकते हो, आप एक pen ले सकते हो, and simply try to keep a track of your eye and the line or the sentence that you are reading. How that pointer helps is कि आपका eye, आपका mind and आपका text, उसको वो pointer helps you in keeping a track of it. So your eyes and your mind follows what you are reading. That is an effective way of following what you are reading. Second is rereading sentences repeatedly. Now कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ रहे होते हैं but our focus is somewhere else, or maybe we don't like the genre we are reading, और एक forced reading या out of compulsion हम पढ़ रहे होते हैं. In that case क्या होता है कि mind तो कहीं और है but understanding is of course almost nil, और थोड़ी बहुत वेग सी अंडरस्टैंडिंग होती है. इन दैट केस हम क्या करते हैं, वी गो टू द क्वेश्चंस एंड देन वी रियलाइज कि यार पैसेज तो समझ ही नहीं आया. नाउ वी गो बैक टू द पैसेज, वी ट्राई टू रीड द पैसेज, और वी डोंट ट्रस्ट आवर इंस्टिंक्ट्स कि हमने अगर पढ़ा है सो क्या मुझे समझ में आया है. सो व्हाट वी डू इज कि वी रिग्रेस, वी गो बैक टू द पैसेज, वी रीड द पैसेज. दिस किल्स टाइम फॉर श्योर. दिस ऑल्सो किल्स योर एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑन द टेक्स्ट. आइडियली करना क्या चाहिए, वंस यू हैव रेड द टेक्स्ट, एक रीडिंग पे भरोसा रखो, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, आगे बढ़ो. ठीक है. एट द एंड अगर टाइम बच गया, एट द एंड अगर किसी क्वेश्चन की डिमांड है, इन दैट केस ट्राई टू रीरीड. एंड रीरीड भी सिर्फ ऐसा नहीं कि रीरीड द एंटायर पैसेज, ट्राई टू स्कैन द क्वेश्चन, ट्राई टू स्कैन द कीवर्ड दैट योर क्वेश्चन रिक्वायर्स. थर्ड इज गेटिंग स्टक ऑन डिफिकल्ट वर्ड्स. नाउ क्लैट आपसे ये डिमांड बिल्कुल नहीं कर रहा है दैट यू हैव अ लिस्ट ऑफ 1000-2000 वर्ड्स जिसको आप मेमोराइज करके रखो. In fact, if you go according to the syllabus that CLAT has given or CLAT mentions, वहाँ पे effectively क्या चाहिए होता है कि आपके पास कुछ words होते हैं
नाउ इफ द वर्ड्स आर नॉट एक्टिंग एज अ डेटरेंट, अगर वर्ड्स के वजह से पैसेज की अंडरस्टैंडिंग में कोई खासा फर्क नहीं पड़ रहा है, सो मार्क द वर्ड, बाद में चेक कर लेना, बट डोंट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ और डोंट गेट स्टक देयर, आगे बढ़िए. और इफ इट कम्स टू कॉन्टेक्चुअल वोकैब कि आपके पास कोई वर्ड है एंड यू नो वांट टू एक्सट्रैक्ट द मीनिंग, प्लीज डू अ सिंपल टास्क, आइडिया का फ्लो ट्रैक करिए, रीड वन सेंटेंस बिफोर इट, रीड वन सेंटेंस आफ्टर इट. आपको खुद ही एक थ्रेड मिल जाएगा जहां पे आइडियाज कनेक्ट हो रहे होंगे. दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट द वर्ड मीन्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट. देन इट इज अबाउट रीडिंग एट द सेम पेस थ्रू आउट. अब देखो, पैसेज का इंट्रो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, पैसेज का कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, उसको बहुत कॉन्सेंट्रेशन और बहुत फोकस के साथ पढ़ना. बीच में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसको आप क्विकली गो थ्रू कर सकते हो. सो प्लीज अंडरस्टैंड कि एज अ स्मार्ट रीडर आपको हर चीज़ उसी स्पीड के साथ नहीं पढ़नी है. अगर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप स्किप करके भी यू कैन अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ द पैसेज, तो मेक श्योर कि उसको आप क्विक रीड करो. बाकी इंट्रो, कंक्लूजन और द मेन पॉइंट ऑफ इट, उसको बहुत इफेक्टिवली पढ़ना. And the last is about not keeping a time track. Now, what separates a good reader or a smart reader from a reader जो थोड़ा नया हो सकता है is कि आपको एक analytical approach रखना पड़ेगा. आपको ये समझना पड़ेगा that you have roughly 24 minutes for 4 passages and you need to divide your time in reading as well as solving the questions. So जब तक आप timed reading या paced reading नहीं करोगे, it's not going to help. Moving forward to the second module, which is active reading. अब एक्टिव रीडिंग होता क्या है? अभी आई मेंशन कि हम पैसिव रीडिंग बहुत करते हैं. क्यों? हो सकता है कि हम कहीं पर मॉक देने बैठे हो, हम घर में बैठे हो, बाहर शोर हो रहा हो, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया हो सकता है आपने शुरुआत बहुत क्रेज के साथ की हो, बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म के साथ की हो, बट विद दैट डिस्ट्रैक्शन, विद द डिस्टर्बेंस, यू लूज ट्रैक ऑफ इट. अब आप क्या कर रहे हो? अब आप किसी कंपल्शन की वजह से यू आर जस्ट रीडिंग द टेक्स्ट, या हो सकता है मॉक है, मजबूरी है, 2 घंटे बैठना तो है, लेट्स जस्ट रीड द टेक्स्ट, इसकी वजह से आप पढ़ रहे हो. बट आर यू अंडरस्टैंडिंग, आर यू ग्रास्पिंग? द आंसर इज नो. करना क्या चाहिए? इफ यू आर रीडिंग, जो पॉइंटर आपने लिया है, व्हेन यू आर फॉलोइंग इट, प्लीज मेक श्योर कि जो इंपॉर्टेंट और ज़रूरी कीवर्ड्स दिख रहे थे उनको हाईलाइट करिए. हाईलाइट करने के बाद मूव फॉरवर्ड. सेकेंड थिंग इज नॉट मेकिंग नोट्स और नॉट मार्किंग. टेक अ पेंसिल, टेक अ पेन, मार्क व्हाट यू फील इज मोर वेरी इंपॉर्टेंट इन द टेक्स्ट, और ज़्यादा नहीं, साइड में ट्राई टू मैप द पैसेज. मैप द पैसेज का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमने कोई पैराग्राफ पढ़ा एंड वी नोटिस दैट देयर इज अ सर्टेन पैराग्राफ विच हैज़ अ रोल, सेकेंड पैराग्राफ हैज़ अ डिफरेंट रोल, थर्ड पैराग्राफ का कोई अपना रोल हो सकता है. जब पढ़ रहे हो साइड में वो रोल लिखते जाओ. इससे होगा क्या ना कि अगर आपने गलती से कोई पैराग्राफ का मीनिंग पैसेज पढ़ते वक्त थोड़ा सा भी अगर मिस आउट किया भी, सो नाउ यू नो दैट आई नीड टू गो बैक एंड आई जस्ट नीड टू रीड द समरी जो मैंने बगल में लिखा हुआ है पैराग्राफ के, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, 3 एंड सो फोर्थ. दिस विल हेल्प यू इन कीपिंग अ ट्रैक ऑफ योर ओन आइडियाज इन योर माइंड. देन इज मेंटल समरी आफ्टर ईच पैराग्राफ. अब देखो, क्लैट में, एलिट में या किसी मॉक में ये ह्यूमनली पॉसिबल तो है ही नहीं कि आप वहाँ पे ये लिखने वाली प्रैक्टिस करो. दिस इज स्पेसिफिकली व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग एट होम. बट मेक श्योर कि ये जो राइटिंग समरी वाला आइडिया था ना, ये आपके माइंड में चलता रहना चाहिए व्हेन यू आर इन द मॉक और व्हेन यू आर इन द एक्चुअल एग्जाम. देन आस्किंग व्हाई डिड द ऑथर राइट दिस इज स्पेसिफिकली लाइक आस्किंग और थिंकिंग ऑफ कि क्या पर्पस रहा होगा. इसके लिए गेट इन द राइटर्स शूज, गेट इन द ऑथर शूज एंड थिंक ऑफ कि अगर ऑथर ने ऐसा लिखा है सो क्या सोच रहा होगा ऑथर, क्यों लिखा होगा. That is specifically the link to the author's tone. That is specifically the link to the author's reason or purpose behind writing the passage. This is what differentiates a noob or a rookie from a smart reader. Then the third module is about mapping the passage. Mapping the passage is roughly an extension of the last slide जो हमने देखा था. But यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ हम ये करेंगे ना कि हम वहाँ पे passage की summary के beyond जाएंगे and we will try to look at it logically. कि कौन सा पार्ट ऑफ द पैसेज इज द कंक्लूजन, विच लाइन ऑफ द पैसेज इज द मेन आइडिया, विच लाइन ऑफ द पैसेज इज द सपोर्टिंग आइडिया, विच लाइन इज इंट्रोडक्शन, कौन सा ऐसा पार्ट है जो कॉज इफेक्ट फॉलो कर रहा है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, या एनीथिंग दैट इज लाइक अ प्रॉब्लम सॉल्यूशन. तो हम वहाँ पे उस तरीके से, उस ट्री के हिसाब से वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैसेज. नाउ व्हाट यू शुड आइडियली नॉट बी डूइंग इज नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड विथ मेन आइडिया एंड द डिटेल्स. हर सपोर्टिंग आइडिया, हर डिटेल्ड आइडिया मेन आइडिया नहीं होता है. कुछ सपोर्टिंग आइडियाज़ का या कुछ डिटेल्स का काम सिर्फ इतना होता है कि वो सपोर्टिंग आइडिया मेन आइडिया को बिल्डअप करते हैं या और ज़्यादा री इन्फोर्स करते हैं. देन रीडिंग विदाउट स्ट्रक्चरल अवेयरनेस. आप
रीडिंग विदाउट स्ट्रक्चरल अवेयरनेस का मतलब है कि आपको यही नहीं पता कि पैसेज में कौन सी चीज़ सपोर्ट करने के लिए लिखी गई है, पैसेज में कौन सा पॉइंट इंट्रोडक्शन देने के लिए लिखा गया है, पैसेज में कौन सा पार्ट आर्ग्यूमेंट का काउंटर आर्ग्यूमेंट है. इफ़ यू मिस दैट पॉइंट, इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू मार्क्स इन योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. उसके अलावा क्रिएटिंग अ क्विक मेंटल रोड मैप भी वही चीज़ है कि दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हाउ इज़ द इंफॉर्मेशन फ्लोइंग. इफ़ यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द इंफॉर्मेशन इज़ फ्लोइंग, आप मेन आइडिया अच्छे से फॉलो कर पाओगे, टोन बहुत इफेक्टिवली फॉलो कर पाओगे, पर्पस बहुत इफेक्टिवली फॉलो कर पाओगे. एंड इफ़ यू गेट एनी क्वेश्चन जो थोड़ा सा भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से लॉजिकल की तरफ डिविएट हुआ, you will ace that as well, be it inference, assumption, strength, then weaken, anything for that matter. And the last point here is question analysis. अब question analysis का जो सबसे पहला point है, reading options before question stem. बहुत सारे लोग, बहुत सारे students, they get lured into क्रॉस चेकिंग इट. और कई बार ऐसा होता है कि हम अपना वो स्कूल वाला अप्रोच याद करते हैं जहाँ पे हमने कोई कीवर्ड देख लिया एंड देन वी क्विकली गो टू द पैसेज, और पूरा पैसेज पढ़ने के, पूरा अनसीन पैसेज पढ़ने के बजाय व्हाट वी डू इज कि वी ट्राई टू जस्ट लोकेट द कीवर्ड. अगर कीवर्ड दिख गया तो वहाँ पर एक दो लाइन पढ़ के हम आंसर मार्क कर देते हैं. अब प्लीज़ अंडरस्टैंड, स्कूल में काम कर गया था. स्कूल वाले आपसे इन्फरेंस अजम्पशन तो पूछते नहीं. स्कूल वाले डोंट गो एज एनालिटिकल एज क्लैट एंड एलेट आर गोइंग. यहाँ पे थोड़ा सा आपको उस रास्ते से हटना पड़ेगा. यू विल नीड टू फॉलो अ स्टैंडर्ड अप्रोच फॉर दैट. एंड व्हाट टू डू इज डोंट रीड द ऑप्शंस बिफोर क्वेश्चन स्टेम. थोड़ी बायसनेस आ जाती है. हाँ, एक बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड बट एंड बहुत ही डिसिप्लिन्ड थिंग दैट यू कैन डू इज, एंड डिसिप्लिन माइंडेड, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ यू वांट, लुक एट द क्वेश्चन सो दैट यू नो किस तरीके का अप्रोच या किस तरीके के क्वेश्चंस इस पैसेज से निकल कर आने वाले हैं. एट मैक्स दैट, नथिंग बियॉन्ड दैट. देन not identifying the question type. कई बार question stems ऐसे आ जाते हैं, which of the following best summarizes the passage, and you are not even aware कि which of the following best summarizes the passage is nothing but the main idea, or which of the following reflects the attitude of the author. आपको यही नहीं पता कि ये तो tone है. So please keep a note of that as well. Please keep a note of the question types. Answering from memory. कई बार हम passage पढ़ लेते हैं और हमें लगता है कि शायद हमने passage सही समझा है, and कई बार we take a wrong answer as well. इसमें क्या करना चाहिए? Take 10 seconds, 20 seconds of your time, go back to the passage. अपने instinct पे भरोसा करना चाहिए. I'm not denying the fact, but instinct से ज़्यादा अगर आपको लगता है, if there is any doubt in your mind, please go and spend not more than 10 to 20 seconds to confirm your answer and get back. और falling for extreme words, ये हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं, always और none, never, ये सारे बहुत ही absolute words या बहुत ही extreme words होते हैं. Please try to avoid it. And the last point is ignoring except and not. इसका way out is circle the negative words. कोई ऐसा negative words या कोई ऐसा transition marker है, please keep a note of it. कोई ऐसे words हैं जो बहुत extreme हैं, उनको eliminate करिए या उनको भी highlight करके रखिए कि they are going to have a certain play in those questions जो आपको trick कर सकते हैं. और if at all there is a problem, please refer back to the passage. Now, a quick recap जो हम लोगों ने आज के सेशन में सुना और देखा is following speed reading, specifically the pointer technique. एक pointer रखिए, a pen or a pencil will do the work. Chunk reading मतलब group of words एक साथ पढ़िए. Don't focus on one word at a time, बहुत ज़्यादा time खाएगा वो. Then is about eliminating sub vocalization, which is not saying the words in your mind. ऐसा हम लोग सोचते हैं कि we are saying so हमको अच्छे से समझ में आएगा, ऐसा नहीं होता. Then is about active reading में the main point is underline the keywords, underline those words जो सबसे ज़्यादा important role play करते हैं पैसेज में. वो पैसेज का सब्जेक्ट हो सकते हैं, टॉपिक सेंटेंस हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक किसी बॉडी का नाम हो सकता है, कोई डेट हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो सकता है, कंट्री का नाम हो सकता है, could be either of them. Basically the important proper nouns of the sentence. Then a three word margin note. 3 word margin note मतलब map the paragraph P1, P2 ऐसा करके. Then a mental summary of each paragraph so that you mentally connect each and every paragraph and understand what the passage in its entirety means. Then author का purpose, उसके लिए भी जो आपने 3 word notes किए हैं, उन 3 words को follow करिए. It will take you to the tone, it will take you to the purpose of the passage. Then passage mapping, जहाँ पे passage का role, whether it is an argument, counter argument, intro, conclusion, इसका track रखिए. And the last point is question analysis, जहाँ पे आप एक बार questions को check करके question stem के demand के हिसाब से भी you can try to align the
reading of the passage. And the rough यहाँ पे सबसे important चीज़ that is going to play a role is skimming and scanning, क्योंकि वहाँ पे you can quickly skim and look for the keyword जो आपके question में है, and then scan the data, come to the right answer. So that is it for today's video on the effective strategies for reading. If there is anything that you liked about this video, do let us know in the comment section below. Thank you.